Hello children, today we will start a new chapter, States of Matter. We know the definition of matter, that anything that occupies space and has some mass is called matter. And the three common states of matter are solid, liquid and gas or gaseous state, right? So out of solid, liquid and gaseous state, we will discuss only gaseous state. For this session 2020-2021, the liquid state is deleted from NCERT syllabus and solid state is there in class 12 syllabus. So in this class, in class 11th, we will discuss gaseous state only. And these three states of matter depends on two factors. The first factor is intermolecular forces. These forces can be forces of repulsions as well as forces of attraction. And the second factor is thermal energy. The existence of these three states of matter is due to the balance between thermal energy and the intermolecular forces of attraction. As I said, these intermolecular forces can be forces of attraction and forces of repulsion. These forces are also called van der Waals forces. W-A-A-L is the spelling. Van der Waals forces. Van der Waals is basically the name of a Dutch scientist और उन्हीं के नाम पे इन फोर्सेस का नाम van der Waals forces रखा गया है. We have done lesson 4 chemical bonding and molecular structure. In chemical bonding chapter, we have done types of bonds. They are also forces of attraction. In ionic and covalent compounds, the atoms are held together by forces of attraction. But these forces of attraction are through proper bonds. Right? For example, in ionic compounds, Coulombic forces of attraction exist and a proper electrovalent bond is there. And in covalent compounds, covalent bond is there. And other than these proper bonds, there are some other forces of attraction. And in today's class, we are going to talk about these forces only, or intermolecular forces, which are also called van der Waals intermolecular forces or van der Waals forces. These forces can be of three types. Like if we talk about intermolecular forces, जिसको शॉर्ट में हम एब्रीवेटेड फॉर्म लिख लेते हैं IMF, intermolecular forces can be of three types, or we include hydrogen bond also, so we say they are of four types, right? And the types are: number one, dipole forces, dipole forces. The second category or second type is dipole induced dipole forces. Then third is dispersion forces. And last type is hydrogen bonding. So van der Waals forces are apart from ionic bond and covalent bond, right? अब ये जो van der Waals forces हैं, ये किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट कर सकते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल पोलर हो या नॉन पोलर हो. ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी van der Waals forces आ जाते हैं. मॉलिक्यूल जब न्यूट्रल होगा या नॉन पोलर होगा, तब भी ये फोर्सेस डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहे होंगे. तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आर van der Waals forces, and these forces can be defined as weak intermolecular forces, right? Can be attraction and repulsion, and these forces actually depends on the distance between molecules or atom. और कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग दैन दीज फोर्सेस, राइट? तो एक तरफ हमारे पास आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड है, हम उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं. वो प्रॉपर बॉन्ड है जहाँ पे जो दो एटम्स हैं वो प्रॉपर या स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं.
और ये फोर्सेस जो हैं ये वीकर फोर्सेस हैं। तो एक सेंटेंस यहाँ तक बहुत क्लियर होना चाहिए कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शंस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, एंड दीज आर ऑफ 4 टाइप्स विच वी हैव डिस्कस्ड, राइट। Let's now discuss these forces one by one. So let's start with first type, dipole force या dipole forces of forces, also called Keesom forces. After the name of the scientist, these forces are also called Keesom forces, right? अब यहाँ पे जो वंडरवॉल फोर्सेस अराइज करेंगे वो बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल तभी आएगा जब मॉलिक्यूल में पोलैरिटी हो, राइट। पोलर मॉलिक्यूल्स हैं क्या कि पोलर मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से 2 पोल्स आ जाते हैं या 2 चार्जेस आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, राइट। और ये चार्जेस जो होते हैं ये पार्शियल होते हैं, तो हम इसको जो डिनोट करते हैं वो हम डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो जो HCl का मॉलिक्यूल है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम यहाँ पे निकालें तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, हाइड्रोजन की 2.1, तो डिफरेंस आ रहा है 0.9 का। और हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 एटम के बीच में 0.9 या उससे ज़्यादा आ रहा होता है तो मॉलिक्यूल हमारा पोलर होता है। यही अगर मीथेन का मॉलिक्यूल होता, मीथेन जो 4 हाइड्रोजन के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट, इसमें पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 0.4। तो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं है, राइट। लेकिन HCl पोलर है, वाटर मॉलिक्यूल पोलर है। तो जब ऐसे 2 पोलर मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगे एज वेल एज फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी, उन्हीं को हम बोलते हैं डाइपोल फोर्सेस। यानी फोर्सेस अराइज हुए हैं 2 पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे अगर HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, HCl में खुद में तो पोलैरिटी है, लेकिन अगर यही HCl के मॉलिक्यूल्स, जिसमें कुछ ये होगा डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, अब ऐसे अगर बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल्स एक साथ होंगे, राइट, जैसे एक और मॉलिक्यूल हमने बना लिया और 3 मॉलिक्यूल हमने बना लिए, राइट। तो व्हाट विल हैपन अगर ऐसे बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल्स एक साथ हैं, तो जो पॉजिटिव पोल होगा हाइड्रोजन का, ठीक है, ये पॉजिटिव पोल जो होगा हाइड्रोजन का, ये क्या करेगा, नेगेटिव पोल जो है ये इसका क्लोराइड आयन का, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट। और इसी तरह से जो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह से मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होंगे, वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगे, जिनको हम वॉन्डरवॉल फोर्सेस कहेंगे। अब HCl एक डाइपोल वाला मॉलिक्यूल है, यानी उसमें 2 पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो 2 ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स आ रहा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ रहे हैं जिसमें पोलैरिटी है, राइट। तो हम इसको बोल देंगे डाइपोल फोर्सेस। अब यही कैटेगरी अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी ये एग्जाम्पल आ जाएगा, राइट, कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहा है। अगर हम इस बॉन्ड को बोलते हैं कि हाइड्रोजन का पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को अगर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस तरह की जो बॉन्डिंग आती है 2 मॉलिक्यूल के बीच में, उसको हम बोल देते हैं इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो HCl मॉलिक्यूल्स में अगर इस तरह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहे हैं तो डाइपोल फोर्सेस। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल या फिर NO2 का मॉलिक्यूल्स, अगर ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं आपस में साथ में रखे गए हैं और उसमें हो क्या रहा है कि किसी पॉइंट पे आके एक का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करेगा और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और सबको अफेक्ट करेगा। So dipole forces can be defined as when polar molecules comes in contact, यानी 2 polar molecule same या different comes in contact with each other, their partial charges act as electric fields and give rise to dipole forces. So these forces, Keesom forces or dipole forces, always arises between 2 polar molecules. Now the second group is induced dipole forces, right? अब इसका भी एक और नाम है, बिकॉज दीज फोर्सेस वर स्टडीड बाय डेबाय, तो डेबाय के नाम पे इसको डेबाय फोर्सेस भी बोलते हैं, राइट।
अब नाम से देखिए क्या पता चल रहा है, डाइपोल लिखा हुआ है, बीच में छोटा सा हाइफन लगा रखा है और उसके बाद इंड्यूस्ड डाइपोल की बात हुई है। इसका मतलब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब भी आएंगे, ये एक पोलर मॉलिक्यूल होगा जिसमें डाइपोल होगा और एक कंप्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा जिसमें डाइपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल प्रेजेंट है, डाइपोल प्रेजेंट है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल एब्सेंट है, डाइपोल एब्सेंट। अब ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, राइट, तो व्हाट विल हैपन, जिसमें पोलैरिटी है, जिसमें डाइपोल प्रेजेंट है, वो दूसरे मॉलिक्यूल में भी डाइपोल को या पोलैरिटी को इंड्यूस्ड कर देगा। इंड्यूस्ड means the polar molecule will give rise the polarity to non-polar molecule also। ठीक है, इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, अगर हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल है, HCl, राइट, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव होगा, और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसमें हम कोई भी एक इनर्ट गैस ले लेते हैं, आर्गन, राइट। अब एक डाइपोल वाला मॉलिक्यूल और एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल एब्सेंट है, अगर वो आसपास हैं तो क्या होगा। अगर हम HCl के मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लें, राइट, ये HCl का मॉलिक्यूल है, इसका ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जो डाइपोल वाला मॉलिक्यूल है, यानी जिसमें पोलैरिटी है, वो क्या करेगा, हीलियम या इनर्ट गैस, अगर हमने हीलियम या आर्गन कोई भी ले रखी है, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर आर्गन के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, किधर, टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ HCl, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर अट्रैक्ट हो गए तो ये नेगेटिव साइन इधर, ये पॉजिटिव साइन इधर। तो जो एक इनर्ट गैस थी जिसमें डाइपोल बिल्कुल नहीं था, एक पोलर मॉलिक्यूल ने क्या किया, उसके अंदर डाइपोल को इंट्रोड्यूस कर दिया या इंड्यूस्ड कर दिया, राइट। उसके साथ पोलैरिटी डेवलप कर रहा है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लेकर आ रहा है, भले ही वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होंगे, टेम्प्रेरी होंगे, सारी चीज़ें होंगी, बट स्टिल इनर्ट गैस के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एंड आ गए हैं और डिस्टॉर्शन कॉज होगा, राइट। कोई भी इनर्ट गैस हमारी है उसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हम डिस्टॉर्शन बोलते हैं। और जितनी आसानी के साथ एक एटम या नॉन पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसी को ही हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ी थी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन हो रहा है। तो अभी जो हमने ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है, ये क्या शो कर रहा है, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन कॉज बाय अ पोलर मॉलिक्यूल इन आर्गन एटम, राइट। तो डिस्टॉर्शन कॉज बाय पोलर मॉलिक्यूल, caused by polar molecule in argon atom और एनी अदर इनर्ट गैस, हीलियम होता तो हीलियम का एटम, मतलब कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल, ज़रूरी नहीं है इनर्ट गैस ही हो, कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो एक पोलर मॉलिक्यूल अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में किसी पॉइंट पे डाइपोल को इंट्रोड्यूस कर रहा है या इंड्यूस्ड कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं डेबाय फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड कैटेगरी विच इज़ डिस्पर्जन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस, अब इसका भी एक नाम है, फर्स्ट हमने बोला था कीसम फोर्सेस, फिर डिबाई फोर्सेस, अब डिस्पर्जन फोर्सेस को हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लंदन फोर्सेस की बात करते हैं। एंड दीज फोर्सेस आर कॉल्ड लंदन फोर्सेस आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिन्होंने इन फोर्सेस के बारे में स्टडी करी थी, उनका नाम है फ्रिट्ज लंडन। फ्रिट्ज लंडन ने बताया था इन फोर्सेस के बारे में, तो हम इसको बोलते हैं लंदन फोर्सेस। अब ये डिस्पर्जन फोर्सेस क्या हैं, हम फिर से रिकॉल कर लें। हमने बात करी थी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, यानी ऐसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में आएंगे। फिर हमने कहा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, यानी ऐसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो डाइपोल यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल और एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कम्प्लीटली नॉन पोलर है, उनके बीच में आएंगे। अब ये जो डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, ये बिल्कुल टोटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं, एकदम नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, बिल्कुल पोलैरिटी नहीं है, ज़ीरो डाइपोल मोमेंट आ रहा है, राइट, बट स्टिल उसके अंदर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टेंट पे, किसी ना किसी पॉइंट पे पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। और जब वो पोलैरिटी डेवलप हो रही है बिल्कुल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो हम उन्हीं फोर्सेस को बोल देते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो अगर हम कह रहे हैं हमारे पास दो एटम है नोबल गैसेस के, नोबल गैसेस आपको पता है कंप्लीटली अनरिएक्टिव होती हैं, नॉन पोलर होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। तो अगर दो एटम हैं और उनकी पोजीशन कुछ इस तरह से है, वो इस तरह से पास पास में है, ये दो एटम्स हो गए, जो डॉट है वो उनके न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो अभी जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है। लेकिन इसमें एक पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि जो एक एटम था उसका न्यूक्लियस क्या करे, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, राइट। और उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, न्यूक्लियस इधर हमने बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, राइट। तो जिधर ये है न्यूक्लियस, ये हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव एंड आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो डेल्टा नेगेटिव हो गया। और इधर न्यूक्लियस है तो ये डेल्टा पॉजिटिव, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर होगा तो डेल्टा नेगेटिव। ये दो आटम में किस तरह से पार्शियल चार्जेस आ रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा कि एक का न्यूक्लियस या पॉजिटिव क्या कर रहा है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये कुछ अट्रैक्शन आ रहा है, कुछ इस तरह से अट्रैक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से बना के। तो ये दो एटम के बीच में बिल्कुल नोबल गैसेस के एटम हैं ये, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ नॉन पोलर, पूरी तरह से नॉन पोलर एटम्स हैं, नॉन पोलर एटम्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट। और उनके बीच में क्या हो रहा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, एक किसी भी इंस्टेंट पे डेवलप होगा, कभी साथ में चलते चलते दो सारे मॉलिक्यूल साथ में हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाए और पोलैरिटी आ जाए, ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगी ये, बट स्टिल ये हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है। और इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, जैसे बेंजीन, बेंजीन जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है, कंप्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बट स्टिल बेंजीन जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर यही दिया जाता है कि बेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल होके भी लिक्विड स्टेट में इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंस्टेंस पे पोलैरिटी डेवलप हो रही है, और उसी पोलैरिटी की वजह से जो उसकी स्टेट आ रही है वो लिक्विड स्टेट आ रही है। तो डिस्पर्जन फोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो डिस्पर्जन फोर्सेस कंप्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी ये ऐसा होता है कि अगर वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या फिर नॉन पोलर एटम है, क्योंकि जो इनर्ट गैसेस हैं वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो उनका जो पॉजिटिव यानी कि जो न्यूक्लियस होगा वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ कुछ इस तरह से अट्रैक्ट कर लेगा, और जो फोर्सेस वहाँ पे डेवलप होंगे, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे डेवलप होंगे, दोज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर ओनली कॉल्ड लंडन फोर्सेस। अब अगर हम तीनों फोर्सेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल से, और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल स्ट्रॉन्गर होंगे डिस्पर्जन फोर्सेस से। डिस्पर्जन फोर्सेस कंप्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आ रहे हैं, इसलिए डिस्पर्जन फोर्सेस को हम बाकी दो फोर्सेस के कंपैरेटिवली वीकर फोर्सेस बताते हैं। तो आई होप डिस्पर्जन फोर्सेस का पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें कि कितना डिस्पर्जन फोर्स डेवलप होगा, वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा डिस्पर्जन फोर्सेस का, तो जो मैग्नीट्यूड है डिस्पर्जन फोर्सेस का वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट। एक है मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर साइज़ की हम बात करेंगे। मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर साइज़, अगर हम मास के टर्म में बोलें तो जितना ज़्यादा मास होगा इसका मतलब साइज़ उतना ही बड़ा हो रहा है। तो अगर मॉलिकुलर साइज़ बढ़ता जाता है या मॉलिकुलर मास बढ़ता जाता है तो हम कहते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी बड़े हो जाते हैं। जो बिगर molecules हैं they are easily distorted or polarized in comparatively to those molecules which are having lesser molecular masses। तो अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट फैक्टर को, अगर हम लेके चलें फर्स्ट फैक्टर ऑन विच these dispersion forces depends, तो molecular size और molecular mass की बात हो रही है, राइट। और अगर हमें ये कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, मीथेन, सब कंप्लीटली नॉन पोलर है, हमने बात करी थी कि मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.4 होता है, तो मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं होगी। मीथेन का मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। मीथेन है हमारे पास C2H6 है जिसे हम कहते हैं ईथेन, और C3H8 है
जो है फॉर्मूला प्रोपेन का, और एक और भी लिख सकते हैं C4H10, जिसे हमने बोल दिया ब्यूटेन। अब इसमें अगर हम बात करें कि लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस सबसे ज़्यादा किस में होंगे, तो हम कहते हैं एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो C4H10 में सबसे ज़्यादा होंगे डिस्पर्जन फोर्सेस कंपैरेटिवली रेस्ट ऑफ द 3 एल्केन्स जो मीथेन, ईथेन और प्रोपेन हमारे पास है। ठीक है, और as the molecular mass or size increases, London dispersion forces increases as well as the boiling points also increases। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का साइज़ होगा या उसका मास होगा या जितना ज़्यादा उसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ऑन मूविंग फ्रॉम मीथेन टू ब्यूटेन, dispersion forces increases, dispersion forces as well as boiling point दोनों क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, इंक्रीजेस। तो अगर आपको अरेंज करने को दे दिए जाएं ऐसे मॉलिक्यूल्स, तो आप मॉलिकुलर मास देख के अरेंज कर सकते हैं। एंड द सेकेंड कैटेगरी इज मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या उसका शेप, मॉलिकुलर ज्योमेट्री। मॉलिकुलर ज्योमेट्री हम इसलिए बात कर रहे हैं कि सपोज अगर आपको पेंटेन के 3 आइसोमर दे दिए गए, है ना, 10th क्लास में आपने पढ़ा है पेंटेन जो है वो एन पेंटेन भी बनाता है, आइसो पेंटेन भी बनाता है और नियो पेंटेन भी बनाता है, नियो पेंटेन। अब इसमें अगर आपको बताना हो कि किसमें सबसे ज़्यादा होंगे डिस्पर्जन फोर्सेस, तो सबका मॉलिकुलर मास सेम होगा, राइट। सबका मॉलिकुलर मास की जब हम बात करेंगे, 5 कार्बन आएंगे उसके अंदर, 12 हाइड्रोजन आएंगे, तो मॉलिकुलर मास तो सेम होना है। तो फिर हम किस बेसिस पे बताएंगे, तो फिर हम बताते हैं उसकी ज्योमेट्री या उसके शेप से। हम कहते हैं एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीजेस या लंडन फोर्सेस इंक्रीजेस। ठीक है, और लंडन फोर्सेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आपको अरेंज करना है, और पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, राइट, तो जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज़ निकाली गई हैं एन पेंटेन की अगर हम बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 36.2 डिग्री सेल्सियस। आइसोपेंटेन की हम बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 26.8 डिग्री सेल्सियस। ये सब एक्सपेरिमेंटली निकाले गए हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट। और नियोपेंटेन की बात करें तो सबसे कम आता है 9.5 डिग्री सेल्सियस। तो एन पेंटेन का सबसे ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। अब सबसे ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि एन पेंटेन का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज़ को कि अगर हम ड्रॉ करें एन पेंटेन, कि एन पेंटेन किस तरह से आएगा, तो आपको पता है कि एन का मतलब होता है नॉर्मल, यानी कि जितने भी कार्बन होंगे वो क्या होंगे कि स्ट्रेट चेन में अरेंज होंगे। तो सरफेस एरिया आप देख सकते हैं, ठीक है, 3, 4 और 5 कार्बन, सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा आ रहा है, ये एन पेंटेन है। जब हम आइसोपेंटेन पहले बना लेते हैं, जब हम आइसोपेंटेन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा चेन का, यानी जो 5 कार्बन है उसमें से जो सेकेंड लास्ट कार्बन होगा उसमें ब्रांचिंग हो जाएगी, मतलब एक कार्बन कुछ इस तरह से ब्रांच के फॉर्म में अरेंज रहेगा। हाइड्रोजन भी लगा देते हैं ताकि वैलेंसी का सैचुरेशन रहे, राइट। तो ये आइसोपेंटेन है। सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया, सरफेस एरिया डिक्रीज करने से लंडन फोर्सेस डिक्रीज करते हैं, और लंडन फोर्सेस डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। और लास्ट है नियोपेंटेन। जब हम नियोपेंटेन की बात करते हैं तो 5 कार्बन का कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उसके साथ 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, यानी 2 कार्बन लगे होंगे, राइट। ये आ जाता है स्ट्रक्चर। अगर हम हाइड्रोजन लगा दें तो सरफेस एरिया और रिड्यूस हो गया अगर आप एन पेंटेन के कंपैरेटिवली देखिए। तो एज अ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, the dispersion forces decreases as well as the boiling point decreases. This means surface area is proportional to boiling point or dispersion forces or London forces, right? तो आगे कभी भी आपको बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करने के दिए जाएँ तो आप कई सारे उसमें फैक्टर देखेंगे, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सरफेस एरिया। उसको ध्यान रखिएगा कि सरफेस एरिया के बेसिस पे आप बता सकते हो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और ऐसा होगा क्यों, क्योंकि जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है हम उसमें बोलते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा आते हैं, और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, वो चेंज हो जाएगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करने का क्या मतलब हुआ कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, अगर उस टर्म में भी अगर हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी एन पेंटेन की, क्योंकि वहाँ स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेंगे,
right? So this is about dispersion forces. And the last group is, or category is, hydrogen bonding, which we have already discussed in chemical bonding and molecular structure chapter. Let's quickly revise it. What is hydrogen bonding? हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं कि अगर कोई एक हाइड्रोजन का कंपाउंड बना हुआ है और उसमें हाइड्रोजन अगर किसी एक हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या होता है, उसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और मॉलिक्यूल में एक पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट या डाइपोल अराइज कर जाएगा. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इन अ हाइड्रोजन कंपाउंड व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय अ कोवलेंट बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन पेयर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट एटम एंड अ पोलैरिटी और डाइपोल अराइजेस. से फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि ये HCl के बीच में, मतलब HCl में हाइड्रोजन और Cl के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हाट विल हैपन, a polarity in the molecule will arise and due to which both the atoms will acquire partial charges. Hydrogen will acquire delta positive, Cl will acquire delta negative, or electron cloud will slightly shift towards more electronegative atom than hydrogen, which is Cl in this case. And when many molecules of HCl comes together, so this will be the situation like HCl, so many molecules are there, so the negative end of one molecule will attract positive end of another molecule, right? So when these polar molecules comes in contact, so a hydrogen bond is formed. A hydrogen bond is formed, or we can say forces of attraction between two molecules, जिसको हम क्या बोल देंगे, इंटरमोलिकुलर, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहे हैं. और हाइड्रोजन का कंपाउंड है इसलिए हम इसको बोल देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड. इफ़ यू रिमेंबर जो पहला ग्रुप हमने डिस्कस किया था वो था डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की हमने बात करी थी, तो वहाँ भी HCl का ही हमने एग्जाम्पल लेके किया था कि दो HCl के मॉलिक्यूल्स अगर आपस में साथ में रखे हुए हैं तो उनके बीच में भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. बेसिकली जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जस्ट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कोई एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है. ठीक है, केमिकल बॉन्ड अगर होता है तो हम उसको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं जैसे HCl में हमने दिखाया था, और ये जस्ट एक वीकर बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, तो उसको हमेशा हम डॉटेड लाइन के से ही शो करते हैं. और हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन के ही कंपाउंड्स में बनेगा, मतलब ये कंडीशन है कि हाइड्रोजन होना चाहिए, राइट. और अगर हम इसकी बात करें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड क्या है, कैसे इंक्रीज़ करता है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती जाएगी या फिर जो एटम है उसका साइज़ डिक्रीज़ करता चला जाए, वैसे वैसे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका एक्सटेंट बढ़ता चला जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है. अगर हम बात करें, हमारे पास HF है, वाटर मॉलिक्यूल है, राइट, और अगर हमारे पास और अमोनिया का मॉलिक्यूल है, राइट, तीनों मॉलिक्यूल्स पोलर हैं. जो HF होगा कुछ इस तरह से होगा, ये H और F के बीच में पूरी परमानेंट कोवलेंट बॉन्ड बनी हुई है, ठीक है. और ऐसे ही अगर एक और HF का मॉलिक्यूल हो और जब वो साथ में रखे हुए होंगे तो F के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा. ऐसे ही अगर वाटर का मॉलिक्यूल होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल में अगर हमारे पास ऑक्सीजन है और उसमें अगर हम बात करते हैं कुछ ये स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव तब आ जाएंगे जब ऐसे ही एक और वाटर का मॉलिक्यूल होगा, राइट, और उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ, दूसरा जो मॉलिक्यूल है वाटर का उसके ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा. और ऐसे ही जब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं तो ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ऐसे ही एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे होगा, राइट,
इस नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, राइट। तो इस तरह की बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन के कंपाउंड में आती है, और हाइड्रोजन जब अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है तो एक तरह का एक और बॉन्ड बनता है, मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कोवलेंट बॉन्ड तो प्रेजेंट ही हैं, उसके अलावा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फिर क्या होता है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। एक एग्जाम्पल अगर दे दें कि नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, इसलिए नाइट्रोजन के ही ग्रुप में, ग्रुप 15 में फॉस्फोरस भी आता है जो नाइट्रोजन की तरह मतलब नाइट्रोजन की तरह हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वो अमोनिया बना रहा है। ये PH3 बनाता है जिसको हम फॉस्फीन कहते हैं, फॉस्फीन, राइट। और जब हम बात करते हैं दोनों के बॉइलिंग पॉइंट की तो बहुत डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन से बहुत ज़्यादा होता है, और उसका रीज़न यही बताया जाता है कि अमोनिया का एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट है जस्ट बिकॉज ऑफ कि अमोनिया के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है। मतलब दोनों में अगर हम बात करें, NH3 ये स्ट्रक्चर है, राइट, और PH3 की अगर हम बात करेंगे तो भी यही स्ट्रक्चर आएगा। मतलब फॉस्फोरस है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए। फिर क्यों इसका अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट एक्सीड कर रहा है फॉस्फीन से? तो रीज़न यही है कि अमोनिया में एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ गई। एक्स्ट्रा बॉन्डिंग कौन सी आ गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, जो फॉस्फीन में नहीं आ पाती है, राइट। फॉस्फीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने की वजह से मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं है, लेकिन अमोनिया का मॉलिक्यूल पोलर है, और पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का कंपाउंड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डेफिनेटली बनाएगा ही बनाएगा जो फॉस्फीन नहीं बना पाता, और इसकी वजह से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई हो जाता है। अब हमने जब क्लास स्टार्ट करी थी तो हमने एक सेंटेंस बोला था कि जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर हैं वो अपनी स्टेट ऑफ मैटर में इसीलिए एग्जिस्ट कर पाती हैं क्योंकि बैलेंस बना रहता है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस में और थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी इज़ नथिंग, वो काइनेटिक एनर्जी ही है। जब हम मॉलिक्यूल्स के मोशन की बात करते हैं तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, राइट। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। यानी हम जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उतनी ही क्या होगा, थर्मल एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब यही दोनों फैक्टर्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल को स्टेबल रखते हैं। अगर हम गैसेस स्टेट की बात करेंगे तो जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो गैसेस स्टेट में सबसे वीक होते हैं। यही रीज़न है कि जो गैसेस स्टेट के मॉलिक्यूल हैं दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक आ रहे हैं, लेकिन उनकी जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं यानी उनकी थर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो वो हाईएस्ट होती है। तो बैलेंस हो रही है, एक चीज़ वीक है, एक चीज़ स्ट्रॉन्ग है, राइट। और जब हम सॉलिड स्टेट में बात करते हैं तो पता है आपको कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास पास होते हैं। पास पास होने की वजह से उनके इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जो थर्मल एनर्जी होती है वो कम होती है, राइट। और जो लिक्विड स्टेट आएगी उसमें जो दोनों तरह की एनर्जीज हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि या दोनों फैक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो इन बिटवीन द रेंज होते हैं सॉलिड और गैसेस के। तो यही दोनों फैक्टर्स हैं जो मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, स्टेबलाइज रखते हैं। अब हमें इस चैप्टर में गैसेस स्टेट पढ़ना है, तो एक लास्ट सेंटेंस गैसेस के लिए और बात कर लेते हैं। जो अभी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम किसी गैस के टेम्परेचर को लो करते हैं तो उसकी थर्मल एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हमने क्या कहा कि थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो अगर आप टेम्परेचर को घटाएंगे तो आप उसकी थर्मल एनर्जी को घटा रहे हैं, आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को घटा रहे हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच होगा क्या, जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाएंगे, मींस द मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर। तो अगर हमें किसी गैस को कंडेंस करना है तो कंडेंस करने का सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि हम क्या करें, टेम्परेचर को लोअर कर दें। टेम्परेचर को घटाने से क्या होगा, जो गैस है वो कंडेंस हो जाएगी, यानी कि वो लिक्विफाई हो जाएगी या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब आप किसी लिक्विड के टेम्परेचर को कम करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रीजिंग। हम जब फ्रीज़र में आइस बनाने के लिए वाटर को रखते हैं तो हम टेम्परेचर लोअर कर रहे हैं और वो जो लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर को घटाने से हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और हम गैसेस के टर्म में बात करें तो गैसेस को अगर हमें लिक्विफाई करना हो तो हम टेम्परेचर को घटा के ही कर सकते हैं, हम कूल डाउन करके ही कर सकते हैं गैसेस को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।